So everyone write down this particular question जिसको लेकर के हम लोग बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है? इससे कंसेप्ट क्लियर होगा. राइट डाउन द क्वेश्चन. देयर आर 3 bags A, B and C. There are 3 bags A, B and C. Bag A contains 4 white and 6 black balls. 4 white and 6 black balls. Bag B contains 3 white and 7 black balls. And bag C contains बैग बी का क्या है? bag B contains 3 white and 7 black balls. And bag C contains bag C contains 6 white and 4 black balls. 6 white and 4 black balls. Okay, done everyone? Now write down. A bag is selected at random. A bag is selected at random. And then 2 balls are drawn from the bag. And 2 balls are drawn from it. Okay, write down. 2 balls are drawn from it. Now write down. Number 1. Find the probability of getting 2 red balls from bag A. So 2 red balls from bag A. 2 white balls from bag A. Find the probability of getting 2 white balls from bag A. Number 2. Find the probability of getting 1 white and 1 black from bag B. So 1 white and 1 black from Bag B. Number 3. Find the probability of getting 2 white balls. Only this much, 2 white balls. और कोई bag वाइग नहीं है mention इसमें. Find the probability of getting 2 white balls. Okay. Next. If the 2 balls drawn, next question. If 2 balls drawn were found to be both white. next question. नहीं, इसका सब question. इसका ही सब question, but next question. If 2 balls drawn were found to be both white, find the probability that it was from. Find the probability that it was from bag A. Find the probability that it was from bag A. Okay. Now, everyone note down. We are going to first of all discuss 2 questions from R.S. Silver, which will be from conditional probability, and then slowly जैसे जैसे हमको लगेगा हम ये वाला सब कराएंगे. और देखना तुम लोग 2-3 क्वेश्चन जो मैं R.S. Silver से कराऊंगा, उसके बाद जो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग देखना पूरा जो तुम्हारा कंसेप्ट है, आई थिंक पूरा कंसेप्ट जो है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ भी बचेगा नहीं उसके बाद. सो ध्यान देना एक बार, और कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार बोलना. और याद रखना, बिकॉज यू आर एट होम, so there will be a concentration problem that you will be called here and there, so make sure that you
fully concentrate on what I'm teaching here on the board in this class, because ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने लास्ट भी बोला था कि आज का क्लास में लगभग हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहला चीज, टेक आउट आर.एस. अग्रवाल, एंड आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सा टॉपिक आर.एस. अग्रवाल का? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। एक बार पेज निकालो सबको और निकाल लिया, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक बार वो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। So just note down. Question is something like this. And see, I'm not discussing the one which I have given you right now. अभी मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और फिर वो फाइनली हम लोग करेंगे लास्ट में। जब करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है? ध्यान दो। सबसे पहला चीज, let us discuss one question, okay? A coin is tossed. Let's take a dice thrown, okay? A dice thrown. Find the probability of getting an even number. See, the question seems to be very easy, and yes, it is very, very easy. See, I'm just trying to draw comparison, okay? कि ये बेस में हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या है, तो सबको को पहले मैं ये बोलूंगा कि कोई कॉपी मत करो, पहले बोर्ड पे ध्यान से देखो। तो ये पहला क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रो, ठीक है? इफ अ डाइस थ्रो, द सैंपल स्पेस आर 1 2 3 4 5 and 6. Now you are asked to determine the probability of getting an even number. So probability of getting an even number will be, see, out of total 6 cases, as you know that probability is a ratio of your possibilities, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो उसका possible outcome divided by all possible outcome. So what is all possible outcome when a dice thrown? It is 6. इस 6 आउटकम्स में इवन नंबर कितने बार एग्जिस्ट कर रहा है बताओ तो? इवन नंबर इस पूरे 6 आउटकम में 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है। So 3/6 is the probability of getting an even number when a die is rolled. The answer is equals to how much? Half. Now just see the next question. A die is rolled and the outcomes and the result was found to be even number. Be an even number. देखो ध्यान से नोट करना, इस क्वेश्चन में क्या था? अ डाई वाज रोल्ड, सेम इसमें भी अ डाई इज रोल्ड, दोनों में सेम चीज है। इसमें है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि अगर एक डाई को फेंका जा रहा है तो उसमें इवन नंबर का चांसेस क्या है, इवन नंबर आने का चांसेस क्या है। इसमें क्या बोला है कि एक डाई को फेंकने के बाद देखा गया, मैं एक डाई को रोल किया और मैंने देखा कि आ क्या रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और उसके बाद मैंने पूछा किसी और से, मान लो ए है और बी है, ठीक है? ए ने डाई को रोल किया, ठीक है? और डाई रोल करने के बाद सीधा सीधा जवाब बी को नहीं दिया, जो आउटकम है वो सीधा सीधा उसने बी को नहीं बोला। क्या बोला कि अगर मेरा आउटकम इवन नंबर था तो तुम बताओ, तो फिर तुम बताओ कि उस इवन नंबर का आंसर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर लेस देन 4 था। बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला वो, ए ने क्या बोला, बात को ध्यान से समझना। ए ने बोला कि अ डाई इज रोल्ड, मैंने एक डाई को फेंका, ए ने बोला, और बोला कि मेरा आंसर जो है इवन नंबर आया था। तुम बताओ, बी को पूछा, तुम बताओ कि क्या चांस है कि वो इवन नंबर का जो वैल्यू था वो लेस देन 4 था। तो सीधा सा बात, अगर बी थोड़ा स्मार्ट होगा तो वो पूरा क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा, पूरा डाई रोल किया उसके बारे में नहीं सोचेगा। बी के लिए क्या हो जाएगा, बी का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2, 4 और 6 पे होना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट स्टूडेंट्स, जस्ट नोट डाउन, बी का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ 2, 4 और 6 पे होना चाहिए।
और इस 2, 4 और 6 में इवन नंबर लेस देन 4 कितना है बताओ तो? 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 out of 3. 1 out of 3 is the probability of getting even number less than 4 if the outcome was an even number. What find the probability of getting even number less than 4 if the outcome was an even number? So try to understand this part. If the outcome was an even number, for B, sample space becomes what? Sample space becomes not the entire thing when a die is rolled. Sample space becomes only those cases where, I mean, in which the outcomes are even number. देखो, और इसमें जो है अब हमको देखना है कि कितना वेज में आंसर जो है वो लेस देन 4 होगा। कितने केसेस में आंसर लेस देन 4 है? एक केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। अब मैं यही चीज को तुमको प्रोसेस में और आई मीन एक जो डेफिनेशन है, जो कंडीशनल का जो डेफिनेशन है वो तो ये हो गया डायरेक्ट उसके लिए आंसर, और मैं प्रोसेस में बताऊंगा और बताऊंगा कि देखो इस प्रोसेस में भी यही चीज हो रहा है। तो ध्यान से एक बार नोट करना। The result was found to be an even number. Find the probability that an even number was less than 4. There's a question. So now just note down even number less than 4. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, एक तो डेफिनेशन से और एक फॉर्मूला, आई मीन डायरेक्ट फॉर्मूला, आई मीन फॉर्मूला वाइज। तो देखो ध्यान से फॉर्मूला वाइज करें। तो मैंने फॉर्मूला में तुम लोगों को क्या समझाया है? फॉर्मूला में समझाया कि देखो दो चीज पहले तुम आइडेंटिफाई करो, ठीक है? दो इवेंट्स आइडेंटिफाई करो, एक जो हो चुका है, एक जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है? एक जो हो चुका है और एक जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक बात बताओ, क्या चीज हो चुका है? इवेंट, आई मीन द रिजल्ट वाज फाउंड टू बी एन इवन नंबर। So let E be the event of getting an even number. और an F क्या बताओ तो? F is the event of जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। So even number less than 4, event of getting even number less than 4। तो एक बात बताओ, मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी E का या F का? देखो, a die is rolled and result was found to be an even number. Find the probability that even number was less than 4. मतलब हम लोग को F का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर तुम डेफिनेशन पे जाओ तो F का प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन। देखो अगर हम बोल देंगे F का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हम लोग को समझाने का कोशिश कर रही है, जो ये रिप्रेजेंटेशन P of F का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक डाई को रोल किया जाएगा, समझ में है, तो उसमें से F का प्रोबेबिलिटी निकालना। लेकिन F by E का मतलब क्या हुआ? F by E का मतलब हुआ कि अगर एक डाई को रोल किया गया है और पता चल गया कि E is was the outcome, उसमें से निकालो प्रोबेबिलिटी F का। बात को समझो, दोनों में डिफरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मतलब और प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E का मतलब क्या है? ध्यान से नोट करना। F by E का मतलब और F का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मतलब हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, दैट्स ऑल, व्हेन अ डाई इज रोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? Find the probability of even number less than 4 if it was known that when a die was rolled the outcome was an even number। मतलब इसमें से हमको निकालना है कि अगर मान लो ये हो चुका है तो उसमें से अपना F कितना बार अकर कर रहे हैं, मतलब F का नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस कितना है। मतलब एक बात बताओ, अगर हमको जानना है कि E में F कितना बार अकर कर रहे हैं, तो अगर हम F और E का इंटरसेक्शन निकाल दें तो मतलब क्या हुआ बताओ तो? F और E का इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? F और E में जो कॉमन चीज है, E में अगर हम देखें E और F में S के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ में है तो बात। लेकिन अगर हम F का E के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं मतलब क्या हुआ? मतलब E में जो अकर कर चुका है, E में जो हो चुका है उसमें से सिर्फ F का इंटरसेक्शन निकालो। तो याद रखना चीज वही हो रहा है। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम एक चीज को प्रोसेस में मतलब पूरा स्टेप्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में है? तो पूरा मतलब क्योंकि हम लोग को जो एग्जाम जो है, तुम लोग को एग्जाम जो अपेयर करेगा वहां पे तो डायरेक्ट इस तरीके से तो नहीं लिखोगे ना आंसर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो रहेगा नहीं। तुमको वहां पे 4 मार्क्स या 2 मार्क्स पे क्वेश्चन दिया रहेगा या जो भी मार्क्स होगा। 1 मार्क्स पे अगर दिया रहेगा तो ठीक है, अलग बात है, तुम डायरेक्ट आंसर लिख दिया। बिकॉज 1 मार्क्स का रूल ये है कि अगर आंसर तुम डायरेक्ट लिख दो तो तुम मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं है तो तुमको प्रोसेस दिखाना ही पड़ेगा।
तो जो प्रोसेस तुमको रिप्रेजेंट करना होगा, तुम अगर तुम डायरेक्ट कर दोगे, जो डेफिनेशन है मतलब डायरेक्ट आंसर, तो वहां पे तो तुम प्रोसेस दिखाई नहीं रहा, तो फिर तुम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को तुम कैसे समझा है और इसका आंसर निकालना है। तुमने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो वो नहीं चलेगा। प्लीज मेक श्योर दैट डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं चलेगा। तुमको हो सकता है कि तरीका पूरा पता चल गया, समझ में आ गया, लेकिन यू हैव टू शो द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई वी आर, ये में इसमें प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में ये है f/e, मतलब e में से देखो सैंपल स्पेस बन गया e, बिकॉज नीचे जिस चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ योर पॉसिबिलिटीज। तुम्हारा जो सोच है, तुमने जो सोचा है वो जितना बार अकर कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में कॉपी लिखो और नीचे क्या करोगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या हुआ, f/e का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ई हो गया ना, बिकॉज ई में से तुमको जानना है, ई में से तुमको बताना है कि एफ उसमें कितना बार अकर करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया तो बात। तो ये चीज हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखो ई का मतलब क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सो इट इज 2 4 6। व्हाट इज एफ, एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, सॉरी इवन नंबर लेस देन 4, ठीक है। बट अब जब तुम एफ लिखना, एफ को ई के साथ कंपेयर मत करना। देखो यही तो चीज पूरा का पूरा जो है ना, जो तुम्हारा लॉजिक है, लॉजिक फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेड है, जिसमें तुमको दिमाग नहीं लगाना। फॉर्मूला का काम क्या होता है, देखो फॉर्मूला एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है फॉर्मूला, जहां पे इसका कोई जरूरत नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉर्मूला में जब हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है, एफ में क्या लिखेगा, एफ में जब लिखेगा तो वो क्या सोचेगा, ई में से एफ का लिखना है। नहीं, देखो दोनों में डिफरेंस है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, पी ऑफ एफ, और इसी क्वेश्चन में अगर हम पी ऑफ f/e लिख दिया मैंने, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ f। when you are writing probability of f, it is always with respect to the sample space, I mean the main sample space, the real sample space, that is s. When you say f/e means we are talking about that samples, out of that sample f का नंबर ऑफ टाइम्स उसमें क्या क्या आ रहा है, मतलब e में से f क्या क्या आ रहा है वो हमको लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f का मतलब क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस में ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कितना चीज होगा, एक ही चीज ना होगा। अब ये इसमें बहुत लोग क्या करता है कि वो देखने लगता है कि f e में कितना बार है, मतलब e में जितना जो चीज है उसमें से f क्या क्या आएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, याद रखना। फिर तो फॉर्मूला का मतलब ही क्या हो जाएगा, फिर समझ में आया। तो फॉर्मूला वाइज जा रहे हो तो e जब लिख रहा है तो e को अलग लिखो, e को सैंपल स्पेस में लिखो कि सैंपल स्पेस में e कितना बार आ रहा है, f सैंपल स्पेस में कितना बार आ रहा है। और जब हम लिखेंगे यहाँ पे f/e का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब e में से f कितना बार अकर कर रहा है। समझ में आया। तो इसको डिफरेंस, ये समझो डिफरेंस को, तब जाके तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर होगा कंडीशनल का और फिर बेस थ्योरम का। ओके, सो आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, मैंने जो समझाया। अब देखो n ऑफ e हो गया 3, n ऑफ f हो गया 1, और उसके बाद हम लोग को निकालना है ये, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ये लाइन क्या है, f e में कितना बार अकर कर रहा है, एक ही बार अकर कर रहा है। n of f intersection e कितना हो गया 1, so what is probability of f by e, so it is 1 divided by 3। और ये चीज को अगर हम डायरेक्ट अगर हम देखें तो probability of f if e has already occurred, मतलब पूरा e में e क्या है 3 है, उसमें से उस 3 वेज में f क्या है, probability I mean f क्या है बताओ, तो इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। तो पूरा 3 केस में कितने केसेस है जो तुम्हारा नंबर्स लेस देन 4 है, इवन नंबर लेस देन 4 है 1, तो 1/3 आंसर सेम आएगा। लेकिन कहने का मतलब है इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर लिख नहीं सकते, हमको ये पूरा प्रोसेस ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको ये पार्ट कॉपी करने के लिए पहले मैं इस तरह का और 1-2 एग्जांपल दूंगा पहले, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल, सॉरी बेस तो ये मोबाइल है। नाउ नेक्स्ट सम देखना एक बार। Now I want everyone to concentrate here in the next sum, जो मैं अभी बोर्ड पे दिखाऊंगा RS अग्रवाल में है, ठीक है, ध्यान से एक बार देखना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो RS अग्रवाल में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। इट इज पेज 1 to 69। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर पेज 1 to 69 का क्वेश्चन नंबर 15। मैं एक बार बोर्ड पे आई मीन स्क्रीन पे शो भी करता हूँ।
कि अगर तुम्हारे पास उस समय इंस्टेंट अगर नहीं है बुक तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकती हो। फोटो भेज देगा। All right. Clear everyone? So this question I'm talking about, number 15. So now note down. नहीं मैंने दे दिया screenshot, नहीं है जरूरत। Now see question number 15. See the probability that इस चीज को ध्यान से इस question को समझना। The probability that a certain person will buy a shirt. The probability that a certain person will buy a shirt is 0.2. अब मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी शर्ट का मैं एस से डिनोट कर रहा हूं और कोट का खरीदने का प्रोबेबिलिटी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। मान लेते हैं मैंने डिक्लेयर नहीं किया सच। अब देखो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ कोट इज 0.3। ठीक है, एक ये हो गया सिचुएशन और एक सिचुएशन हो गया probability that he will buy a shirt is 0.2, probability that he will buy a coat is 0.3, and probability that he will buy a shirt given that he buys a coat. Okay, I repeat, the probability that he will buy a shirt given that he buys a coat is 0.4. अब देखो ये दो सिचुएशंस को एक बार तुम लोग कोशिश करना रिलेट करने के लिए, ठीक है, ध्यान देने का। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया इस क्वेश्चन से, ठीक है। एक बार देखो बुक में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2, he buys a coat is 0.3, he buys a shirt given that he buys a coat, he will buy a coat is 0.4। ये हो गया एक सिचुएशन और एक सिचुएशन ये हो गया। कोई बता सकता है इस सिचुएशन में एस और सी कैसा इवेंट है और इस सिचुएशन में, अच्छा बताओ तो ये केस में एस और सी कैसा इवेंट है। अगर मान लो मैं इसमें अगर बोलूं तुमको, तुम सुनना ध्यान से, इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट एंड अ कोट। अगर मान लो इतना बोला जाए प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट एंड अ कोट, मतलब मैं ध्यान से नोट करना, मैं दो चीज का, दो सेट का मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट एंड अ कोट, ठीक है। नाउ टेल मी इस इन दिस केस व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर एस एंड सी? दे आर इंडिपेंडेंट और सम आई मीन और वन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर। बात को ध्यान से सुना, मैंने दो चीज बोला कि क्या एस और एल सी ये दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, या फिर ऐसा है कि एस सी पे डिपेंडेंट है या फिर सी एस पे डिपेंडेंट है। कैसा सिचुएशन बताओ? डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है बिकॉज प्रोबेबिलिटी विल बाय अ शर्ट, प्रोबेबिलिटी विल बाय अ कोट है। उसके बाद इस क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमको प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट एंड कोट बोथ आर ए टाइम, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये क्या होगा कि कोई दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, मतलब ऐसा कोई परसेंटेज ऑफ चांस नहीं है जहां पे तुम्हारा दोनों चीज अगर खरीद रहा है, ठीक है, दोनों चीज खरीद रहा है तो इंडिपेंडेंटली खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब तुम दोनों चीज साथ में खरीद रहे हैं तो शर्ट का बाइंग कोट पे डिपेंड करता है या कोट का बाइंग शर्ट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है इस सिचुएशन में, ये वाले केस में। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज 0.2 इनटू 0.3 एंड द आंसर इज 0.06। ऑलराइट एवरीवन, ये हो गया एक सिचुएशन। अब देखो इस केस में भी सेम ही चीज पूछ रहा है, ध्यान देने की। Required probability equals to probability that a person will buy a shirt and a coat। मतलब हम लोग यहाँ पे दो इवेंट का, मतलब शर्ट का एंड कोट का हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया लॉजिक, फॉर्मूला कुछ नहीं काम आएगा यहाँ पे, कितना बढ़िया लॉजिक से हम इसको हम दिखाएंगे। देखना एक बार देखो ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे, मतलब एक इवेंट किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब ये हो गया कंडीशनल बोलो या डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बोलो। देखो अगर ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे ये एस और सी दोनों
ऐसा नहीं कि एस सी पे डिपेंडेंट है और सी एस पे डिपेंडेंट है, मतलब कोई एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो तुम बता सकते हो कि कौन सा इवेंट किस पे डिपेंडेंट है? क्या एस इंडिपेंडेंट है, क्या सी इंडिपेंडेंट है? बताओ कौन सा इवेंट इंडिपेंडेंट है और कौन सा इवेंट दूसरों से पे डिपेंडेंट है, बताओ। सी इंडिपेंडेंट है और एस डिपेंडेंट। देखो सी का बाइंग इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो अब तुम्हारा हम चॉइस का नहीं बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ कोट इज इंडिपेंडेंट बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ शर्ट इज डिपेंडेंट व्हेन यू, अगर मान लो ये तुम दोनों चीज, मतलब कहने का मतलब है जब, ठीक है, जब तुम खाली शर्ट खरीद रहे हो तो ठीक है, एकदम आराम से गया शर्ट खरीद के आ गया। तुम जब खाली कोट खरीद रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में दो चीज आएगा, शर्ट एंड कोट, तो उस समय कौन सा इवेंट किस पे डिपेंडेंट हो जाता है? शर्ट कोट पे डिपेंडेंट हो जाता है या कोट शर्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है? इसको समझने का जरूरत है। हमको पता है कि इस सब में कंफ्यूजन कहां शुरुआत होगा। देखो बहुत लोग मुझे ये बात बोलेगा कि यहाँ पे तो शर्ट भी इंडिपेंडेंट है, कोट भी इंडिपेंडेंट है, ये दोनों को अगर देखें तो, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे समझना है, देखो कि अगर हम मान लो शर्ट खरीद रहे हैं तो शर्ट का बाइंग, अगर मान लो तुम खाली शर्ट खरीद रहे हैं तो शर्ट का बाइंग ठीक है वो हो गया अलग, तुम जब खाली कोट खरीद रहे हो तो अलग हो गया। लेकिन जब दो चीज तुम साथ में खरीद रहे हो ना, दो चीज शर्ट एंड कोट, तो वो सिचुएशन में एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट है। उस सिचुएशन में कौन सा इवेंट किस पे डिपेंडेंट है? उस सिचुएशन में शर्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग कोट पे डिपेंडेंट है। बात को समझना, ये लाइन समझ में आया कि नहीं, बताओ तुम लोग को समझ में आया तो बात। अब ये देखो, ये भी ऐसा है कि तुम शर्ट भी तुम खरीद सकते हो अकेले, कोई दिक्कत नहीं, कोट भी अकेले खरीद सकते हैं, लेकिन जब तुम ये दोनों चीज को साथ में लेके चल रहे हो, जरूरी है कि तुम उस रियल टाइम पे कोट और शर्ट दोनों खरीदेगा ही। कहने का मतलब है कि जब तुम दो चीज को मैचिंग करके तुम खरीद रहे हो तो तुम्हारा मैचिंग किसका किस पे डिपेंडेंट है? शर्ट का मैचिंग कोट पे डिपेंडेंट है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि कोट का मैचिंग शर्ट पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा अपना अपना चॉइस और स्टाइल होता है, ट्रेंड होता है, फैशन होता है, वो हम नहीं बोल रहे। हम यहाँ पे सम का बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब तुम ये दो चीज को साथ में रख के चल रहे हो तो यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? शर्ट का बाइंग कोट पे डिपेंडेंट है, कोट का बाइंग शर्ट पे डिपेंडेंट है। कब हुआ ये? जब हम दोनों चीज को साथ में रख करके चल रहे हैं कि ये दोनों चीज हम खरीदेंगे तो हम कैसा दिखेंगे, तो उस समय हम अपना मैचिंग जो है, हमारा शर्ट का मैचिंग कोट पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं कि कोट का मैचिंग शर्ट पे डिपेंड कर रहा है। बात को समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज गलत है। हम दोनों चीज साथ में खरीद रहे हैं तो कौन सा का मैचिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? शर्ट का मैचिंग कोट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे शर्ट स्लैश कोट आएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लाइक समझ में आया तो बात? देखो दोनों में P of S into P of C गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं जब हम शर्ट एंड कोट दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में तुम्हारा शर्ट का सिलेक्शन कोट पे डिपेंड करता है। शर्ट सिर्फ नहीं होगा, शर्ट गिवन कोट, यू हैव बॉट अ कोट, यू विल बाय अ कोट इनटू सी, ठीक है, कोट इंडिपेंडेंट है, बट तुम दोनों चीज अब साथ में खरीद रहे हो तो तुम्हारा शर्ट का सिलेक्शन कोट पे डिपेंड करता है, कोट का सिलेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया तो बात? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S by C which is 0.4 into probability of coat which is 0.3 and the answer is 0.12। और अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना एक बार, रिलेट करें, तो देखो ये काम करेगा ये। So what is probability of S slash C? Is probability of S intersection C divided by probability of C। देखो जो हो चुका है वो नीचे है और इन दोनों का इंटरसेक्शन नीचे है। तो ये बहुत बढ़िया सब है, ये सब स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं था। ये दोनों एग्जाम्पल को कॉपी करो। So everyone note down, there are 3 bags, okay? I want everyone to concentrate and मतलब ऑनेस्टली एक बार इस चीज को समझने का कोशिश करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान में यहाँ पे 3 बैग्स है A, B and C। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका हम बात कर रहे थे आज के क्लास में। हम लोग जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखिए। देयर आर टोटल 3 बैग्स। एक का मैंने नाम A, दूसरा का नाम B और तीसरा का नाम मैंने C रखा है। बैग ए में 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स है। बैग बी में 3 व्हाइट 7 ब्लैक बॉल्स है और बैग सी में 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स है।
अब हुआ क्या कि एक देखो, ये तो हो गया हमारे सामने 3 बैग्स रख दिया गया है, ए बी और सी। ए बैग के अंदर इतना इतना बॉल्स है और हमको अब बोला जा रहा है क्या, देखो कि अब बैग इज सेलेक्टेड, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि एक बैग को सेलेक्ट करो। ठीक है, ठीक है, बैग को सेलेक्ट करो। अब सबसे पहला सवाल ये आया, तुम एक बात ध्यान से नोट करो। जब मैंने तुमको तुम्हारे सामने 3 बैग चॉइस में रख दिया, चॉइस है, ऑप्शन में रख दिया, तो तुम जरूरी है कि तुम बैग ए सेलेक्ट करोगे या फिर बी या फिर सी? नहीं। इसका मतलब इस सम में, बात को ध्यान से समझना, इस सम में बैग का सिलेक्शन भी जो है तुम्हारा श्योर नहीं है। कौन सा बैग सेलेक्ट होगा हमको पता नहीं है। बैग ए भी सिलेक्ट हो सकता है, बैग बी भी सिलेक्ट हो सकता है, बैग सी भी सिलेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मुझे बॉल के सिलेक्शन, अगर यहाँ पे 2 स्टेप्स में हम देखो, पहले हम बैग को सिलेक्ट किए, कौन सा बैग, क्वेश्चन मार्क। पहले मैंने बैग को सिलेक्ट किया, क्वेश्चन रीड करो। अब बैग इज सिलेक्टेड एंड देन 2 balls are drawn. 1 bag is selected followed by 2 balls drawn from it. It means that क्या यहाँ पे कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में अगर हम सिर्फ इतना पार्ट रीड करें अगर, तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में क्या ऐसा कहीं भी मेंशन है कि कौन सा बैग, इतना तक अगर हम देखें तो अब बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड देन 2 balls, मतलब प्रोसेस यही है कि एक बैग सेलेक्ट करो, उसमें से 2 बॉल निकालो, इतना ही। मतलब अगर देखा जाए तो बैग का सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है और बॉल्स का सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब आगे एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो चीज मैं पूछ रहा हूं तुम लोग आंसर दो पहले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग ए इज सिलेक्टेड? एनीवन कैन टेल मी? 1/3. यस, दैट्स करेक्ट, इट इज 1/3। बैग ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग बी का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 और बैग सी का भी सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, अब बताओ मुझे एक बार कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग ए? मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं पता है, 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो इफ बैग ए वाज सिलेक्टेड। समझ में आया तो बात? मतलब यहां पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से नोट करना, यहां पे बैग ए श्योर बन जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, तुम्हारे सामने मैंने 3 बैग्स रख दिया और बोला बैग ए उठाओ, तुमने बैग ए उठाया, तो बैग ए का उठाने में क्या कोई प्रोबेबिलिटी लगा? नहीं। बैग ए तो मैंने बोला उठाओ, तो मतलब तो श्योर हो गया ना वो, तुमने बैग ए पिक कर लिया। अब मैं बोलूं बैग उठाओ, तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन सेट हो रहा है ना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कौन सा बैग उठाए? फिर वो तुम पूछेगा कौन सा बैग, फिर हम बोलेंगे बैग उठाओ, तुम कोई भी बैग उठा सकते हैं। तो कोई भी उठा सकता है, मतलब कौन सा उठा सकता है? जब भी प्रोबेबिलिटी के या जो डे टू डे लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन सिचुएशंस आता है, तो तुम कोई भी उठा सकते हैं, और हर एक का प्रोबेबिलिटी बैग का सिलेक्शन का 1/3 1/3 1/3। बात को समझना, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल इफ यू हैड सिलेक्टेड बैग ए? सो टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल, एनीवन? Sir, 4C2. 4C2 is not the probability. नहीं. 4C2 by 1/3. 4C2 by 1/3. 2/1/3. yes, anyone? 4C2 by 10C2. 4C2 by, I did not hear, 10 10C2. यस करेक्ट, दैट्स करेक्ट। देखो बात को ध्यान से समझना, ये इसीलिए मैंने जो है ना पहले कंडीशनल को समझा करके यहाँ पे मैं आया। टू व्हाइट बॉल इफ बैग ए वाज सिलेक्टेड। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर आपने तो पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अरे लॉजिक को समझो। पिछले वाले सब में क्या था, जो मैंने कंडीशनल में बताया कि इवन नंबर अगर आ चुका है तो उसमें से वो दोनों तो एसोसिएटेड था ना, मतलब हम इवन नंबर में से इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने का पूछ रहे हैं। अब बैग में और बॉल में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? बैग और बॉल में कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। बात को समझो, बैग एक अलग चीज ही है ना, और बॉल्स उसमें से, उसके अंदर बॉल है। लेकिन मैं जो समझ में तो बात कर, हम लोग इसीलिए लॉजिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, लॉजिक पे। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि डाइस थ्रोन एंड इवन एड ऑब्टेन, मतलब इवन नंबर आया मेरा, उस इवन नंबर में से क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो नंबर है वो लेस देन 4 है, उस इवन नंबर में से। यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस बैग में से, समझ में, तो उस बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी कि 2 व्हाइट होगा, तो उस बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी होगा 2 व्हाइट होगा, तो नीचे आ जाएगा 10C2, ऊपर आ जाएगा 4C2, सिंपल। तो इसीलिए लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट if bag B was selected? Can you tell me? Other students also, there are many. क्या होगा आंसर? टोटल 10 बॉल्स है,
10 बॉल्स में से अगर हम लोग 2 बॉल सेलेक्ट करें, कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C2 वेज। और इसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3C2। समझ में आया तो बात? अगर हम ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल इफ बैग C was selected? I think it is clear to everyone. ठीक है, इतना तो मैंने जो समझाया क्लियर हुआ? अब देखो आगे। सर एक बार फिर से समझा दीजिए फर्स्ट वाला ही। अच्छा ठीक है, देखना एक बार फिर से, थोड़ा ना कंसंट्रेट करो इसमें, ठीक है ना, एक बार कंसंट्रेट करो सो दैट एक बार में हम पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं बहुत कुछ एक बार में समझाना चाहता हूँ, दिमाग में हमको पूरा सीक्वेंस फॉर्म करना पड़ता है। तो एक बार ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो मैं ये बोलना चाहता था कि बैग ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग ए, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे सामने बैग ए रखा जाए, तीनों बैग्स रख दिया जाए और तुमको बोला जाए बैग सेलेक्ट करो, तो बैग ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बैग बी का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, बैग सी का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। मतलब तीनों बैग्स का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है। डन, दिस इज डन। क्योंकि बैग रखा गया, जैसे मान लो तुम्हारे सामने मैंने मोबाइल रख दिया, मार्कर रख दिया और एक बुक रख दिया, और मैं बोलूं कि मार्कर का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 out of 3। That the same way we have got 3 bags, so each and every bag का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। अब देखो मैंने क्या दिया तुम्हारे सामने, एक सिचुएशन दिया कि देखो अगर मैंने तुमको बोला कि बैग ए उठाओ और उसमें से 2 बॉल, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आई मीन 2 बॉल निकालो, मैंने क्या बोला? बैग ए उठाओ और उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो 2 बॉल तुमने सेलेक्ट किया वो रेड बॉल होगा? तो सीधा सवाल, मैंने तुमको एक चीज तो बोल दिया, इस स्लैश के बाद ए, अभी मैंने एकदम नॉर्मल भाषा में इसको रिप्रेजेंट किया, नॉर्मल लैंग्वेज में, ना कुछ टेक्निकल प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया। बैग ए अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4C2 आउट ऑफ टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स क्या होगा? 10C2। उसके बाद मैंने बोला कि 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर तुमने बैग बी सेलेक्ट किया हुआ था, तो बैग सी अगर बी सेलेक्ट किया हुआ था तुमने, तो बैग सी में टोटल बॉल्स 10 था। कितने वेज से हम 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C2 वेज। इस वेज पे, इतने वेज में से कितने वेज से तुम 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर सकते हो? 3C2 वेज। सिमिलरली दिस। नाउ हियर लेट मी टेल यू वन थिंग, आई मेड सिलेक्शन ऑफ बैग्स अ श्योर वन। व्हाई? क्योंकि तुमको मैंने यहाँ पे सीधी बोल दिया कि देखो बैग ए उठाओ और उसमें से 2 बॉल निकालो, बैग बी उठाओ और उसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी बताओ, बैग सी उठाओ उसमें से 2 बॉल निकालो और उसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो। अब मैं सिचुएशन चेंज कर दूंगा। अब मेरा सिचुएशन, अब देखो एक मिनट, पहले सिचुएशन चेंज करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखना और क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखो तो अलग बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्हाइट एक ब्लैक बोला है, एक ही बात है, एक व्हाइट एक ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा फ्रॉम बैग बी? एक व्हाइट और एक ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बैग बी में से? टोटल है 10C2, उसमें से एक व्हाइट एक ब्लैक into 7 आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये तो हो गया नंबर 1 और नंबर 2, तुम लोग लिख लेना बढ़िया तरीके से। अब मैं इसको, अब नंबर 3 में जाने से पहले, पहले मैं इसको बढ़िया तरीके से स्टेटमेंट थोड़ा लिख दूंगा, ठीक है? ध्यान दो। देखो इसका कंसेप्ट समझाने में बहुत टाइम लगता है। अगर तुमको खाली सम्स करना हो तो हो जाएगा सम, खाली फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऐसा फॉर्मूला कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और तुम लोगों को भी कंसंट्रेट करना पड़ता है और मुझे भी कंसंट्रेशन का जरूरत है, तो ध्यान देना। अब ध्यान देना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला चीज, पहले मैं नंबर 1 को कंप्लीट कर दूं। Find the probability of getting 2 white ball from bag A. Let even be the event of getting is as it is already mentioned कि bag A. तो bag A में से 2 white ball का probability. Let E be the event of getting 2 white balls from bag A. तो यहाँ पे हमको कोई स्लैश का जरूरत नहीं, क्योंकि बैग ए से ही, बाकी हमको बैग का कोई जरूरत नहीं है। उसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा 4C2/10C2, हो गया खत्म।
ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एक अलग क्वेश्चन था। नंबर टू में बोला जा रहा है कि बैग बी, मतलब हम बाकी बैग्स को देखेंगे नहीं, बैग बी में से हम 2 बॉल निकालेंगे। सो लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting 1 white and 1 black from bag B. So probability of getting 1 white and 1 black from bag B is 10C2 हो गया सैंपल स्पेस। उसमें से एक white और एक black कितने वे से सेलेक्ट होगा? इतने वे से, तो probability हो जाएगा 10 by 10C2। अब थर्ड केस, प्रॉब्लम क्या है थर्ड केस में? देखो थर्ड केस में तो पूरा का पूरा हम लोग को बोल रहे हैं ना, पूरा का पूरा कंफ्यूज स्टेट में हमको रख दिया गया। क्या पहला में बोल दिया कि बैग ए में से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दूसरे केस में बोल दिया गया कि एक राइट और एक ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बैग बी अगर तुमने सेलेक्ट किया तो। तीसरा केस में बोल दिया जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, बस 2 व्हाइट बॉल्स। अब बात तो ये है ना कि तुम ये नहीं बोल, देखो जो 3 बैग्स रखा हुआ है तो 2 व्हाइट बॉल तुम्हारा बैग ए का भी हो सकता है, 2 व्हाइट बॉल बैग बी का भी हो सकता है, 2 व्हाइट बॉल बैग सी का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा probability of getting 2 white ball and if bag is not mentioned is dependent, try to understand, is clearly dependent on selection of bag, which bag you are selecting. But your selection of bag is not dependent on selection of balls, try to understand, because you are selecting bag independently, you are selecting balls when, बिकॉज वो बॉल जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस बैग से आया था वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली अगर देखो तो लॉजिक जो बन रहा है क्या है कि बॉल्स का सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? बैग पे। लेकिन पहला और दूसरा में ऐसा क्यों नहीं था? बिकॉज पहला और दूसरा में क्लियरली बैग को मेंशन कर दिया गया था, तो बैग का सिलेक्शन तो श्योर बन जा रहा था ना, श्योर हो जा रहा था। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसका प्रोबेबिलिटी का हम कहीं भी कोई क्वेश्चन को हम प्रोबेबिलिटी में हम करते नहीं है, क्योंकि जब वो श्योर है तो हम क्यों तो प्रोबेबिलिटी करेंगे उसका। ठीक है, तो ध्यान से नोट करना तीसरा वाला सम में हम इवेंट्स को पहले डिक्लेयर करते हैं कि इसको तब जाके ये समझ में आए। और यहाँ पे हम आज बता रहे टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और ये चीज बेस थ्योरम में कैसे यूज होता है। ठीक है, सी नाउ थर्ड केस में क्या है कि हमारा बॉल्स का सिलेक्शन, देखो बॉल्स का सिलेक्शन बैग पे डिपेंडेंट है, मतलब बॉल्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बैग ए का है, बैग बी का है या फिर बैग सी का। तो फिर यहाँ पे बैग भी डिपेंड, मतलब बैग जो है सबसे पहले हमको बैग को सेलेक्ट करना होगा। तो ध्यान देने पर लेट E1 be the event that bag A was selected, bag A is selected. E2 is the event that bag B is selected. E3 is the event bag C is selected. So what is the probability that bag A is selected? It is 1 by 3. Bag B selected का probability is also 1 by 3. And bag C का probability of selection is also 1 by 3. All right? अब देखो उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 2 बॉल सेलेक्ट किया और हमको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों बॉल है वो व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पे कॉमन इवेंट हो गया क्या, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं अगर ऐसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, तो ये क्या सही है, ये तरीका सही है? तो क्या गलत है बताओ तो? ये सही कब है? जब मैंने तुमको बैग स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि देखो 2 व्हाइट बॉल बैग ए में से निकालो, बैग ए चूज करो, आई मीन चूज नहीं, बैग ए उठाओ, मतलब ये चूजिंग नहीं हुआ ये, क्योंकि मैंने बोल दिया बैग उठाओ तो चूजिंग थोड़ी ना हुआ। उसमें से 2 व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे बैग का छोड़ दो प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, probability of getting 2 white ball if bag A was selected. All right everyone, so what is the probability of getting 2 white ball if bag A was selected? 4C2 by 10C2. एक केस ये होगा। What is the probability of getting 2 white ball if bag B was selected? What is the probability of getting 2 white ball if bag C was selected? अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा?
नहीं आएगा ऐड करके। क्यों बताऊं? क्योंकि तुमने देखो तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स वाज डिपेंडेंट। सी तुम्हारा 2 बॉल्स का सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट था? कौन सा तुमने बैग सेलेक्ट किया उस पे डिपेंडेंट था। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग 2 वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ठीक है तीनों को हम ऐड कर देंगे आ जाएगा, नहीं होगा ऐसे। क्योंकि तुम्हारा जो सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 वाइट बॉल वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ बैग्स व्हिच यू हैड सिलेक्टेड। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स, मतलब हमको यहाँ पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहे हैं। सिर्फ क्या पूछ रहे हैं बताओ तो? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहे हैं। और ये क्या होगा बताओ तो? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ E intersection E1 plus probability of E intersection E2 plus probability of E intersection E3, because your selection of white ball is associated, is dependent on selection of bags first, कि तुमने कौन सा बैग सेलेक्ट किया था। अब एक बात बताओ, ये तीनों केस को हम अगर मान लो हम ऐसे करें probability of E into probability of E1, क्या ये करेक्ट है बताओ तो एक बार। जब हम दोनों चीज साथ में सिलेक्शन कर रहे हैं, जब एक तो देखो जब हम दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, बैग भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है उसमें से बॉल भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो बताओ तो यहाँ पे बैग और बॉल दोनों में से कौन सा किस पे डिपेंडेंट है बताओ? जब हम दोनों चीज साथ में कर रहे हैं तो बताओ। Selections of bag ball selection of ball selection of bag पे डिपेंडेंट है। यस, बट सिलेक्शन ऑफ बैग बॉल पे नहीं डिपेंडेंट है, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सही है, E1 सही है, लेकिन यहाँ पे क्या गलत है बताओ तो दोनों में से? यस, E1 सही है लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा वो केस है जब हम बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब तुम बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स, बोला है खाली। नहीं, तुम्हारा 2 वाइट बॉल किस पे डिपेंडेंट है, बात को समझो। क्योंकि तुमको बोला है कि यहाँ पे एक बैग सिलेक्ट करो उसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करो, तो बैग बॉल का सिलेक्शन बैग पे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सही है लेकिन ये क्या होगा? E/E1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा E/E2 into probability of E2, ये हो जाएगा probability of E/E3 into probability of E3। ठीक है, तो देखना एक बार कि तो यहाँ पे जो ये जो केस है, ये केस होने का कितना चांस है? हाफ ऑफ, देखो ध्यान देना एक बार, हाफ ऑफ ये केस, बात को ध्यान से समझना। देखो ये केस तो तभी होगा ना जब तुम्हारा, सॉरी नॉट हाफ, 1/3। अगर हम यहाँ पे सिंपल मैथ्स का रूल अगर हम अप्लाई करें तो तुम्हारा ये केस होने का चांस कितना है बताओ? यहां से 2 बॉल सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना चांस है? 1/3 ऑफ दिस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये चीज होने का संभावना कितना है? क्या चांस है? 1/3 ऑफ दिस। और ये केस होने का क्यों बताओ तो? क्योंकि ये तो तभी तुम करोगे ना जब तुम बैग भी सिलेक्ट किया होगा। तो समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 1/3 ऑफ, यहाँ पे मैं ऑफ नहीं लगा रहा हूं, बात को समझ लेना। into what is probability of E/E1? 4C2 divided by 10C2. What is this? 3C2 by 10C2 into, and what is this? 6C2 by 10C2 into 1/3। ठीक है, एक बार ये कॉपी करो, ये तुम पूरा जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बिकॉज यहाँ पे पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स को मैंने ई से डिनोट किया है, और ई क्या है? इन तीनों का सम टोटल है। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। बिकॉज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स एज बैग was not specified is equal to sum total of 3 things, sum total of 3 cases, where each case is dependent on selection of which bag. So this situation is only possible if you had selected bag A. So what chance, what percent of case will this particular thing occur? 1/3 of this. मतलब कितने चांस, क्या चांस है कि ये होने का चांस क्या है? हाफ नहीं है, क्या है? 1/3 है। क्योंकि ये तो तभी होगा जब तुमने बैग ए सेलेक्ट किया हुआ था, तो अगर किया होता तो तुमने पहले, समझ में आया तो बात? तो 1/3 चांस है ये होने का, 1/3 चांस है ये भी होने का, 1/3 चांस है ये भी होने का। तो फिर तुम कैसे सिर्फ तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स आ जाएगा? नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स तभी आएगा जब हम ये तीनों का 1/3 ऑफ इतना, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी ना होगा, 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ दिस मिला करके तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स का प्रोबेबिलिटी होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक बार कॉपी करो फटाफट।
यहाँ पे E1, E2, E3 तीनों क्या है बताओ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ये तीनों इवेंट, क्योंकि एक बार में एक बैग बोला जा रहा है सिलेक्शन करने के लिए, तो तुम दो बैग से दो बॉल कैसे निकाल, मतलब नहीं होगा इस तरह का सिचुएशन, समझ में आया तो बात, क्योंकि एक बैग निकाल रहे तुम तो वो दो बैग हो नहीं सकते एक बार में, तीन बैग एक बार में हो नहीं सकते, तो ये तीनों केस अलग अलग है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, और तीनों का सम टोटल क्या है 1/3 + 1/3 + 1/3 1 है। एक बार यहाँ पे कॉपी करोगे जल्दी से। आपने बैग को क्यों कंसीडर कर लिया, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस क्या है, सेलेक्ट अ बैग एंड देन सेलेक्ट अ बॉल फ्रॉम इट, ओ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 व्हाइट बॉल फ्रॉम इट, बट बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐसा क्यों नहीं था, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चंस में बैग श्योर बना दिया गया था कि ये बैग से ये बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसीलिए बैग को उन्होंने साइलेंट रखा। Now just everyone read the last part. If 2 balls drawn were found to be both white. Last part क्या है? If 2 balls drawn were found to be both white. Both white का probability को E से डिनोट करें, ये ऑलरेडी हो चुका है, अब निकालो। इसके ऊपर डोंट वरी, आज मैं एक बार समझा देता हूँ, नेक्स्ट डे, क्योंकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे मैं एक सम लूंगा प्रोडक्शन वाला, और मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि इसमें एक बार में कंप्लीट कर दी क्या है ये पहले। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि if 2 balls were found to be both white, what is the probability that it was from bag A? इसमें और इसमें हम तुम लोगों को नेक्स्ट डे क्लियर बता देंगे कि डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है, मैं वो नेक्स्ट डे बताऊंगा, आज नहीं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। नाउ E1/E, it is probability of E1 in the denominator. You understand why? Tell me why. You have studied this in conditional probability. Do you remember this in conditional probability? ये स्लैश के बाद जो भी चीज है वो हो चुका है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने एन ऑफ ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पी ऑफ ई लिखा। ओके, और ऊपर क्या आएगा बताओ तो, ऊपर आएगा ई इंटरसेक्शन E1 आ जाएगा, आएगा ना। अब बताओ एक बार, ई इंटरसेक्शन E1 का मतलब क्या होगा, E1 ठीक है, लेकिन ई किस पे डिपेंडेंट है ना, नीचे क्या आएगा बताओ तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे क्या आएगा, ये सारा केस आ जाएगा 1 2 3, ये रहा 3, और यही चीज तुम लोग बेस थ्योरम में मैंने बोला था, रख लो इसको, और अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसको समझा कि ये हो क्या है। ठीक है, और मैंने जब तुम लोग को बेस थ्योरम समझाया था तब मैंने ये चीज नहीं बोला था, बोला था देखो ये फॉर्मूला है, नीचे आ जाएगा इस तरह का सारा, और ऊपर अगर E1 निकालना है तो ऊपर बस 1 आएगा, उसका एक पार्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा E में से 1 2 3 में से हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये वाले पार्ट का, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की वो बैग A से ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ऊपर क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, इसका 3 का एक पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। So everyone make sure that in order to complete this chapter you have to attend next day's class also, तब जाके ये पूरा complete होगा। So thank you everyone, I'm ending today's class.